بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ حاضر ہوں۔ سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگین میں نے جو ٹاپک آج کا چوز کیا ہے وہ آرگنائزیشنل ٹاپک ہے، کیونکہ میری خواہش ہے کہ جو آرگنائزیشن کا شاہ صاحب کا وزڈم ہے، ایکسپیرینس ہے، وہ میں آپ لوگوں تک لے کے آؤں۔ آج کا موضوع ہے ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس۔ جب بھی ہیراسمنٹ کا ورڈ آپ کے دماغ میں آتا ہے، آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو وومن ہیراسمنٹ ہو رہی ہے، باسز جو ہیں وہ لڑکیوں کو یا جو خواتین وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، بری نیت رکھتے ہیں۔ تو ان تمام سوالات کو میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ شاہ صاحب کا واسٹ ایکسپیرینس ہے آرگنائزیشنز میں، اور شاہ صاحب کے پاس ایسے مسائل ضرور آئے ہوں گے۔ ان میں پوچھوں گا جب مسائل آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو حل کیسے کرتے ہیں۔ آئیے شاہ صاحب سے میں آپ کی ملاقات کروا دوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، ہیراسمنٹ ایک موضوع ہے آرگنائزیشنز میں، لیکن جیسے بھی ہیراسمنٹ کا ورڈ آتا ہے تو وومن ہیراسمنٹ کی طرف دھیان آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا آرگنائزیشن میں کافی ایکسپیرینس ہے۔ کیا مین ہیراسمنٹ بھی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں کہیں ایسا تجربہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر، لیکن بہت کم ہے، کم ہے، ٹھیک۔ بہت ریئر ہے۔ زیادہ تر تو کمپلینٹس یہی ہوتی ہیں کہ مردوں کے ہاتھوں ہیراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ہمارے یہاں جو کلچر رہا ہے وہ کلچر اس قسم کا رہا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو شجر ممنوعہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ چیزوں کو ہم نے چھپا کے رکھا، لیکن وہ چھپانا ایسا تھا کہ نہ صاف ظاہر ہوتی ہیں، نہ صاف وہ کلیتاً چھپتی ہیں۔ جب اس قسم کی چیز آئے گی تو انسان کے اندر تجسس کا جذبہ بڑھتا ہے، ابھرتا ہے، انسان میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ خواتین کے بارے میں آپ فریلی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ آپ ان سے متعلق اور چیزیں اس کے بارے میں تو ویسے ہی بالکل بات نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر سے کان میں پڑتی تو رہتی انفارمیشن، جی، لیکن وہ پردے میں چھپی ہوئی انفارمیشن ہے، اس سے انسان کا تجسس بڑھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں موقع ملتا ہے کہ جن سے مخالف جی، کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملے، تو وہ جو ایک سٹارویشن پیدا ہوئی بندے میں، وہ اسے اکساتی ہے صحیح۔ اس بات پر کہ وہ جن سے مخالف کے ساتھ وہ پھر ایکسٹرا اٹینشن ڈش آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بندہ۔ اسے آپ ہیراسمنٹ کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے، جی، تو وہ بات بڑھتی بعض کا خاصی آگے تک ہراسمنٹ کے اگلے لیول تک چلی جاتی ہے۔ میں ریئل ٹائم سینیریو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی آتی ہے انٹرویو دینے کے لیے، انٹرویو ہو گیا، اس نے جو باس ہے اس نے لڑکی کو فائنل بھی کر لیا۔ اچھا، اس نے بہانے سے نا 2-3 سوال پوچھنے ہیں۔ پہلا سوال وہ یہ پوچھے گا کہ ہماری آرگنائزیشن میں ڈنرز کا بھی رواج ہے، تو آپ کو کوئی ایسی ممانعت تو نہیں ہے ڈنرز کے لیے؟ تو لڑکی ہاں کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، کولیگ کے ساتھ ڈنر کرنا ہوتا ہے۔ یا پھر وہ ایسا پوچھ لیتا ہے سوال کہ لیٹ نائٹ بھی یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ نائٹ بھی آپ نے بیٹھنا ہے میرے ساتھ انڈائریکٹلی۔ اچھا، تیسرا پھر وہ ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہے کہ ہمارے آرگنائزیشن میں ٹریولنگ بھی ہوتی ہے، آپ کو آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑتا ہے اور بعض اوقات آؤٹ آف کنٹری بھی جانا پڑتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اب ایک لڑکی ہے، وہ یہ کوسچنز فیس کر رہی ہے، وہ ان کو کیسے ہینڈل کرے؟ میرا خیال ہے شاید انٹرویو میں تو اس سچویشن سے شاذ و نادر ہی واسطہ پڑے گا۔ مرد اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ وہ انٹرویو کے ہی وقت اس قسم کی کویسچننگ کر لے، جی، ایٹ لیسٹ میرا تجربہ نہیں ہے۔
یہ چیزیں لیٹر آن پیدا ہوتی ہیں جب انٹریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے شاید اسی لیے مردوں اور عورتوں کا فریلی ملنا اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. صحیح. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ خواتین کام کرتی ہیں, خواتین انٹریکشن میں آتی ہیں, لیکن ایک ڈسٹنس قائم رکھتے ہوئے. اب وہ میل سائڈ جو ہے اس کو وہ ڈسٹنس قابل قبول نہیں ہوتا. ٹھیک. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر جو بگ باس ہے, ٹاپ مین, وہاں سے شاید اس قسم کی حرکت کمی ہوگی. وہ ہوتی جو امیڈیٹ انچارج ہے وہاں سے, جی جی, یا سینئر کولیگ سے, سینئر کولیگس. جی. تو وہ اس قسم کی باتیں لیٹر آن کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس کا ایک بڑا آسان سا حل ہم نے تو رکھا ہوا ہے جی جی. کہ ایک تو خود گہری نظر رہتی ہے کہ جو فیمیل سٹاف ہے اس کے ساتھ وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو بہت ارلی اسٹیج پہ ہی سنپ کر دیا جائے. اوکے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی طرف سے اشارہ آتا ہے؟ میں یہ کہنے لگا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ دوسری طرف سے بھی رضامندی ہوتی ہے. صحیح. وہاں سچویشن ہمارے لیے مشکل بہت ہو جاتی ہے کنٹرول کرنا, کیونکہ راضی ہیں دونوں اور وہ آفس کے ٹائمنگ سے مل رہے ہیں, تو اب جہاں میوچل ایگریمنٹ سے جی ایک بات چیت چل رہی ہے اس کو ہم روک نہیں پاتے, کیونکہ وہ کمپلینٹ ہراسمنٹ کی زمرے میں نہیں آئے گی. صحیح ہے. ٹھیک. ہراسمنٹ جو ہے وہ کنفائنڈ ہے اس صورت تک کہ جب کہ ایک سائڈ دوسرے کے ساتھ زبردستی صحیح آگے بڑھنے کی بات کرے, یا لالچ دے رہا ہے کہ میں آپ کو پروموشن کر لوں گا, میں وہ کسی سیلری بھی بڑھا سینس دوں میں گا. ہے, جی وہ بھی زبردستی کی ایک صورت ہے نا. جی. وہاں پہ جو اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہے, ظاہر ہے کہ اس پوزیشن پہ جب آدمی پہنچتا تو ہوش مندی ہوتا ہے, اس کے سینسز اتنی تیز ہو گئی ہوتی ہیں تھرو ایکسپیرینس, یا یوں کہ یہ شارپن ہو گئی ہوتی ہیں ایکسپیرینس کے ذریعے سے, کہ اس کو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوگا. صحیح. تو اس پہ اسٹرکٹ کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں. میں ایک زمانے میں میری جاب کی ابتدا سوئی گیس سے ہوئی تھی, وہاں ایک اصول دیکھا تو ان دونوں کی عمر 22 سال کے قریب تھی, تجربہ تھا نہیں کوئی, تو اس پرنسپل کی وجہ سے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا تماشا ہے. وہاں دو جو ورکرز تھے, دو امپلائیز, وہ لڑے آپس میں. ٹھیک. ود ان 15 منٹس ہیڈ آفس سے, جو منو ہاؤس میں ہوتا تھا لاہور میں, وہاں سے تھرو ٹیلی پرنٹر ایڈوائس آ گئی, دونوں کی ٹرمینیشن. اچھا, 15 منٹ کے اندر اندر لیٹر بھی ٹائپ ہو گیا تھرو ٹیلی پرنٹر. جی جی. ایڈوائس آئی کہ ان دونوں کو آپ پے آف کر دیں. اب ایک نے زیادتی کی ہوئی تھی, دوسرا بیچارہ مظلوم تھا. اب اس ایکسپیرینس کے ان ایکسپیرینس ہونے کی اسٹیج اور چھوٹی عمر, وہ میری سمجھ میں کسی طرح یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آپ ظالم اور مظلوم دونوں کو ایک لیول سے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. بالکل, میرے دماغ میں یہی سوال آیا. بالکل صحیح. لیکن جو تجربہ ہوا تو پتہ یہ لگا کہ چیزوں کو روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بغیر انکوائری میں گئے آپ دونوں کو فارغ کر دیں. ہر انسان کو کان ہو جائیں گے اس بات پہ. جی جی. تو ہوگا کیا نیکسٹ ٹائم سب کہ آپ اگر لڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ جواب میں لڑے گا نہیں, بلکہ رپورٹ کر دے گا باس کو. یس.
तो मामला वहीं ख़त्म हो गया फिर। सही। तो डिसिप्लिन कायम रखने का ये असूल, उस वक्त स्वी गैस ब्रिटिश कंपनी होती थी, जो मेरा ख्याल 67 में फिर चले गए वहाँ से, तो पाकिस्तानी मैनेजमेंट आ गई हमारी। लेकिन ये प्रिंसिपल जो बाद में जब समझ आई तो मुझे पता चला कि डिसिप्लिन कायम रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये जो आपने हैरेसमेंट की बात की जी। इसको कंट्रोल करने का भी बेहतरीन तरीका ये है कि दोनों को फारिग कर दिया जाए, ओके। बगैर ये देखे कि ज़्यादती किसकी थी, दोनों को फारिग कर दें। होगा ये कि हर आदमी इस पर अलर्ट होगा कि कोई इंक्वायरी नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होनी। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसकी क्लॉज 5 के तहत जी जी। योर सर्विस इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, और 1 महीने की नोटिस पे और करंट मंथ की सैलरी सही। वो दे के विद इन 5 मिनट्स देयर यू गो। ठीक। तो उससे ये चीज़ रुक जाती है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हम क्यों, कब, कैसे इन किस्सों में पढ़ते हैं। सही। नतीजा ये है कि फिर जो आदमी जिसको आपने जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर की, जी जी। आपने एक को अप्रोच कर लिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मेंबर को, मैंने दूसरे को अप्रोच कर लिया, सही है। वो कोई ना कोई ऐसी रीज़न बन गई। वो पर्सनल बायसेस भी तो होती है ना, हो सकता है उनकी ज़ाती दिमाग की वजह से उनको, उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल हो। तो वो उसका बेहतरीन हल यही है टर्मिनेशन, कि आप दोनों को फारिग कर दें बगैर कोई रीज़न दिए, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके अंदर क्लॉज है कि आपकी सर्विसेज किसी वक्त भी 1 महीने के नोटिस से ख़त्म की जा सकती हैं। ठीक। शाह साहब देखिए, एक मैं कोशिश करूंगा जो रियल टाइम प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस के, जो मैंने खुद भी ज़ाती तौर पे देखे, मैं वही डिस्कस करूँ आपसे, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि सिचुएशंस में करना क्या है। अभी लड़की हायर हो गई है, 1 साल हो गया उसको, 1.5 साल हो गया काम करते हुए, तो अब वो जो उसका मैनेजर है, इमीडिएट बॉस उसका, वो कहता है जी मेरे साथ आप कॉफ़ी के लिए चलें। ये एक आम सा जुमला है, बोलने के लिए आ जाता है जी कॉफ़ी के लिए चलें मेरे साथ आप, गिफ्ट दे दिया, या कहीं ना कहीं बातों में ये कह दिया कि अब इंशाल्लाह प्रमोशंस आने वाली हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि किसको प्रमोशन दें। अच्छा, अब लड़की टोटली अनकंफर्टेबल है इस मामले में, लेकिन उसके अंदर एक फ़ियर भी है कि ये मेरा बॉस है, अगर मैंने इसको ना की तो ये मुझे जॉब से भी निकाल सकता है, या ये मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मेरी प्रमोशन रोक सकता है। आपको पता है शाह साहब, जब आप किसी के जब खिलाफ़ होते हैं ना, जब आप, तो फिर आपको पॉइंट्स नज़र आ जाते हैं, क्योंकि इंसान ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हुए छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो कर ही रहा होता है हर शख्स। ख़ास तौर पे डिलेज़ हो रही होती हैं चीज़ें, आप कभी टाइम से लेट आ जाते हैं। अच्छा, जब बॉस जिसके ख़िलाफ़ होता है तो हल्का सा कोई 5 मिनट लेट आता है तो उसको फिर इतनी बड़ी बना देता है उस बात को, या उससे छोटी सी मिस्टेक होती है उसको इतना बड़ा करके बयान करता है। तो ये अंदाज़ा है हो जाता है लोगों को कि अब बॉस के साथ बना के रखनी है। अब ये सिचुएशन और सिनेरियो मैंने आपके साथ सारा डिस्कस कर लिया है, अब लड़की क्या करे इस सिचुएशन पे? देखिए, कुछ ना करे। बात यह है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, जिसको अब नया नाम दे दिया HR का। HR, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट अब भी होता है जी, अभी भी है। उसके ज़िम्मे जहाँ और चीज़ें हैं, वहाँ ये भी है कि ऊपर बैठे हुए बॉस को इत्तला देता रहे कि दफ्तर में हो क्या रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन ऊपर आ जाती है। तो ऐसा होता रहता है, हमारे साथ कई बार हुआ जी कि इन्फॉर्मेशन आ गई कि फलां साहब जो है अपनी स्टाफ में जो फीमेल मेंबर है जी, उसके साथ इस तरह से, तो सीधा सीधा है कि टेलीफोन उठाया और उन साहब को टेलीफोन किया कि आप जाइएगा नहीं, जब स्टाफ चला जाए, आई लाइक टू हैव सम मीटिंग विद यू। ठीक। वो जब आ गए तो उनसे सीधी एक बात की कि लुक, सॉरी सर, आपने कहा कि लड़की जो है वो फ़ौरन रिपोर्ट कर दे इस सिचुएशन को? रिपोर्ट नहीं कर दे जी, एडमिनिस्ट्रेशन खुद वॉच करती है। नहीं, वो तो वॉच अगर ना इस नहीं, सिचुएशन कमरे ये हो ही में, नहीं सकता कि अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जी सही है
तो वो इस चीज़ को पिक न कर पाए। शाह साहब ये तो कमरे में बात हो रही है। नहीं नहीं, वो कमरे में नहीं रहती बात, ये मैं आपको ज़ाती तजुर्बे से बता रहा हूँ। ठीक है। ये इंसानी फितरत में है कि वो अपने आप को स्टीम ऑफ करना चाहेगा, वेंट आउट करना चाहेगा। ठीक है। तो वो बच्ची अगर कमरे से हाँ परेशान निकली है जी जी, तो अपनी किसी न किसी कोलीग के पास आके बात जरूर कर देगी। बिल्कुल सही कहा आपने, सही। जहाँ उसने बात की जी, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक आई कि आई, ओके, ये सही और समझ वो आ गई। इन्फॉर्मेशन अंदर आ जाती है। बिल्कुल सही। तो फिर उन साहब को बुलवा के तो उनसे ये कह दिया कि पेशते इसके कि कोई और एक्शन लो में है, जी बेहतर आप रिज़ाइन कर दें, जी, और इसमें न सिर्फ आपका नोटिस पीरियड वेव ऑफ कर दूंगा, ठीक बल्कि आपको 1 मंथ नोटिस Salary. पे भी दे दूंगा। ठीक। तो आप बेहतर होगा रिज़ाइन कर दें, अदरवाइज आई डिस्पेंस विद योर सर्विसेज। ओके, एंड ही नोज कि जो कहा गया है वो हो जाना है। ठीक। शाह साहब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से हम आगे यहीं से अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। अच्छा, मैंने तकरीबन 500 लड़कियों से पूछा कि आपकी जो बॉस अगर आपको प्रेफर मिले तो आप किस बॉस को प्रेफर करेंगे, लेकिन ये बड़ा हैरानकुन मेरे पास इसका रिज़ल्ट आया। तकरीबन 90% लड़कियों ने ये कहा कि हम प्रेफर करेंगे हमारा मेल बॉस होना चाहिए। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि हरासमेंट की भी शिकायतें आ रही हैं लड़कियों से और वो मेल बॉस भी प्रेफर कर रही हैं। ये सिनेरियो क्या है, इस पे मैं आके शाह साहब से बात करूँगा। और दूसरा मैं बात करूँगा कि जो कंप्लेंट्स हैं उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, उसका भी कोई मैकेनिज़्म ऐसा हो कि जो शख्स है वो हर्ट भी ना हो और वो अपनी ईगो का मसला भी ना बना ले। तो इन तमाम बातों को मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें और हमारा आज का मौजू है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। शाह साहब, मैंने बहुत सारी लड़कियों से ये सवाल किया है, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी किया है ये सवाल और ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये सवाल किया है। दे वांट टू प्रेफर द मेल बॉस। अब हैरेसमेंट अगर फीमेल तो हैर नहीं करती ना, फीमेल या तो ये कम होगा ऐसे सिनेरियो। अब हैरेसमेंट आ रही है मेल की तरफ से और ये बात भी लोगों को पता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम कर रहे होते हैं लोग। तो फिर लड़कियां जो हैं फिर वो मेल को क्यों प्रेफर करती हैं, वो फीमेल को क्यों प्रेफर नहीं करती? हर इंसान को अथॉरिटी पसंद है। जी जो मेल बॉस है उसका एटीट्यूड खा कितना ही पोलाइट हो, काइंड हो, जी लेकिन एक अथॉरिटी एमिट करती है उसकी बॉडी से, जी, वाइब्स आती हैं अथॉरिटी की, वो हर एक को पसंद आएगी। कमज़ोर बॉस किसी को पसंद नहीं है। आप तो ख़वातीन की बात कर रहे हैं, मर्द सबॉर्डिनेट्स को भी कमज़ोर बॉस पसंद नहीं आता। ओके, वो प्रेफर करेंगे ऐसा बॉस जो बहुत स्ट्रांग हो, जो उन्हें हर तरह की प्रोटेक्शन दे सके ठीक। हाई अप से। तो ये उसमें ह्यूमन नेचर असल में काम कर रही होती है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट आपने छेड़ा, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि मैं उस वक्त स्वी गैस में काम कर रहा था जब अभी ये ब्रिटिश कंपनी थी, जी तो उस वक्त डेजिग्नेशन बड़े लो की होते थे। जी जी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे वो मैनेजर कहलाते थे, जी और जो टॉप मैन था वो जनरल मैनेजर। तो एक ब्रिटिश थे डीसी फ्लायर, वो जनरल मैनेजर होते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे अली ज़ई साहब। वो एक बार मुल्तान टूर पे आए, तो उनका जो सेक्शन था एडमिनिस्ट्रेशन का मुल्तान स्टेशन पे, ऑब्वियसली उनका बॉस आ रहा था, तो उन्होंने बेहतरीन गाड़ी भेजी, बेहतरीन ड्राइवर भेजा। वो एयरपोर्ट से ऑफिस की तरफ आ रहे थे, रास्ते में एक बैलगाड़ी थी जिस पे पराली लदी हुई थी। पराली, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड जी, जी। पंजाबी वर्ड। जी जी अब वो आपने देखा बड़ी सॉफ्ट तिनके होते हैं, जी जी, तो बैलगाड़ी पर ओवर हैंग हुआ होता है बहुत। जब वो आते हुए ऑफिस शहर में से गुजर रही थी जीप, तो
उस बैलगाड़ी का ओवरहैंग जो था उसमें से एक तिनका शीशे पर आ गया। ठीक। अब जाहिर है वो इतना सॉफ्ट है कागज़ की जी। तरह, निशान तो कोई आ नहीं सकता जी। और ना आवाज़ पैदा हो सकती है। तो अली ज़ई साहब ने दफ्तर पहुंचते पहला काम ये किया कि उस ड्राइवर को पे ऑफ कर दिया। अब हम यंग थे, हमारे लिए बहुत ये बड़े, हम आपस में बैठ के कहा कि इसने क्या है, फ़िरौनियत है ये ये तो। जुल्म है। हाँ, कि एक तिनका है जी। जो शीशे को टच हुआ और है, नुकसान भी कोई नहीं हुआ। नुकसान हो नहीं सकता, इतना जी। सॉफ्ट है वो, जी, जी। धागे की तरह सॉफ्ट है। जी। तो ये क्या फ़िरौनियत के उसको जॉब से निकाल दिया बेचारे को। जी। लेकिन बाद के वक्त ने ये समझाया कि अली ज़ई साहब का वो कदम बड़ा सही था, इसलिए कि आज वो पराली का तिनका है जो बड़ा सॉफ्ट है, कल को ये सरिया भी हो सकता है। यस, बिल्कुल सही। अब उसके नतीजा क्या है कि हर ड्राइवर महतात हो गया कि मुझे इतनी क्लोज नहीं लेके जानी गाड़ी कि कोई चीज़ उस पर टच कर जाए। इसी तरह जब आप दफ्तर में नज़र नहीं रखते और आपको ये पता नहीं चलता कि कौन आदमी दूसरे के साथ कैसे सलूक कर रहा है, जी। जी। तो फिर आप फेलियर हैं। जो टॉप पर बैठा हुआ बॉस है उसकी आंखें और कान असल में एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, जी। जी। जो उसको डेली बेसिस पे हर इम्पोर्टेंट मामले की रिपोर्ट देते हैं और वो एक्शन लेता है। तो अगर हमारे यहाँ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हायरिंग थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जी। उसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए नज़र रखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो हर इम्पॉर्टेंट इवेंट गुड और बैड उसकी रिपोर्ट आपके पास आती है और आप अकॉर्डिंगली एक्शन ले लेते हैं। सर उसमें एक एहतियात हम आदमी को कर लेनी चाहिए कि अगर कहीं सीनियर आदमी उसमें इन्वॉल्व है जी। तो फिर उसको कमरे में अलहदगी में बुला के सही। उसको ये कह दें कि बेहतर है आप रिज़ाइन कर दें, मैं नहीं चाहता कि आपकी बेइज्जती हो। जी। तो आपने किया, लोगों को पता तो चल जाता है। हाँ, चल तो जाता है। आपकी गुफ्तगू से ज़्यादातर ये बात अखज़ हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम एक्टिविटीज़ की। अच्छा शाह साहब, एक और सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि बॉस ने डांट दिया या फीमेल को, या उसको ज़रा सख्ती से रवैया उसके साथ बरता, या उसकी प्रमोशन नहीं की। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि वो झूठा इल्ज़ाम भी लड़कियां लगा देती हैं। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस में भी ये बात आई हो, बिल्कुल भी उसकी ऐसी नीयत हैरेसमेंट की नहीं थी या फ्रेंडशिप की नहीं थी या लव की नहीं थी, लेकिन लड़की ने अपनी अना में या अपने गुस्से पे कंट्रोल ना पाते हुए इतनी ज़्यादा उसकी ईगो हुई कि उसने कहा जी ये एक अब मेरे पास हरबा रह गया है इसको बदनाम करने का या इसको जलील करने का। अच्छा, बाज़ वक़्त लड़कियों की ख्वाहिश शादी की भी बन जाती है किसी के साथ काम करते हुए। जब वो शादी से इनकारी होती है तब भी उनके अंदर एक एंगर, एक जज्बा बदला लेने का आता है। अब इस सिचुएशन में आपके नज़रिए के मुताबिक तो अगर कोई शिकायत निकली है तो दोनों को टर्मिनेट कर दिया गया है, तो इसमें भी तो एक जुल्म का पहलू आता है कि उस शख्स की कोई नीयत ही नहीं थी ऐसी, या उसने कोई ऐसा सोचा ही नहीं था, बस उसके एक सख्त रवैये की वजह से लड़की ने एक इल्ज़ाम लगाया और वो मसले में आ गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती बॉस का सामने आती, लेकिन यहाँ आपकी अपनी जजमेंट काम करती है। एज ए बॉस जी। आपको अपने मातहतों का, जो सीनियर हैं उनका पता है। ज़ाहिर अगर आपके मातहत 7,000 8,000 आदमी काम कर रहा है जी। तो हर एक को तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो आपकी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मैनेजमेंट है जी। जी। उनको आप पर्सनली जानते हैं। तो कंप्लेंट कहीं से पैदा होगी तो इसी लेवल से होगी, क्योंकि दे आर द डिसीजन मेकर्स। तो हम जानते होते हैं, आप बॉस हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को जानते हैं जी। और
अगर आप नहीं जानते तो फिर अगर मैं नहीं अपने सबॉर्डिनेट्स को जानूंगा, आई हैव नो राइट टू स्टे इन दैट चेयर। सही। तो ऐसे केसेस साफ पकड़े जाते हैं। और फिर अल्लाह का एक अपना निज़ाम कायम कर रहा है जी। कि जब मैं आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगा तो जिन लोगों के पास जाके मैं बयान करता हूँ उसके अंदर लूप होल उनको नजर आने लगते हैं, चाहे मैंने कितना क्लेवरली उसे फैब्रिकेट किया हो इल्ज़ाम को, लेकिन सुनने वालों को ये अल्लाह का अपना निज़ाम है, वरना सच्चाई तो पिट जाए फिर। तो वो नज़र आ जाता है कि ये इल्ज़ाम झूठा है या ये सच्चा है। आप कोई शक हुआ, आपने काउंटर क्वेश्चनिंग शुरू की, जी। फौरी तौर पे सामने चीज़ें आ गई। मैं क्योंकि अर्ज़ किया है, मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो पे हम सारी डिस्कशन करेंगे। अब एक और सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बॉस हैं और 5 उनकी फ़ीमेल सबॉर्डिनेट्स हैं और 4 मेल सबॉर्डिनेट्स हैं। अब उन 5 में से जो एक है वो बॉस के साथ ज़रा ज़्यादा इन्वॉल्व है, चाय के लिए चली जाती है या कोई पर्सनल गपशप के लिए चली जाती है या उसकी ज़रा ज़्यादा तारीफ़ करती है। अच्छा, वो कॉम्पिटेंट कम है। अच्छा, देखने में ये आया है, जो ज़्यादातर देखने में आया है कि बॉस प्रमोशन के टाइम उसकी ज़्यादा प्रमोशन कर देता है। इसमें होता ये है कि जो 4 लड़कियां हैं या वो 5 लड़के हैं वहाँ पे जो नीचे सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो डिसहार्ट होते हैं और फिर वो एक ना गुफ्तगू ऑर्गेनाइजेशन में होनी शुरू हो जाती है। हाँ हाँ यार, ये बॉस के साथ सेट है ना, ये तो बॉस के साथ डिनर्स करती है, ये तो बॉस के साथ चाय पे जाती है और बॉस के साथ इसके पर्सनल मरासिम हैं। अच्छा, अब ये भी एक रियल टाइम सिनेरियो है जो कि मैंने अपनी आंखों से खुद ऑब्ज़र्व किया हुआ है। इस सिचुएशन में अब वो तो तरक्की कर गई, जो बाकी के जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो क्या करें? ऐसी तरक्की देर पा नहीं होती है। आज वो बॉस है, उसको अनड्यू फेवर मिल गई है बच्ची को, जी। कल वो नहीं होगा, कल दूसरा कोई आएगा। तो ऐसे लोग सर के बल नीचे आते हैं जो कैपेबिलिटी पर ऊपर नहीं गए होते, क्योंकि गवर्नमेंट में तो ये काम चल जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर अगर आप कभी इसको देखें एनालिटिकली जी। तो पीटर्स लॉ ऑफ इनकॉम्पिटेंस अपने पूरे अरूज पे नजर आता। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुजरे हैं जो रिटायर होने के बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे थे, जी। और वो उनको प्रोफेसर कहना शायद उनकी हैसियत को कम करने के बराबर हो। वो अपनी ज़ात में एक पूरे लेजेंड थे, लेजेंडरी फिगर। उनका पूरा नाम था पीटर ड्रुकर। तो उन्होंने एक थ्योरी मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस कराई जिसको बाद में जब एक्सेप्ट हो गई हर जगह, तो उसका नाम पीटर्स लॉ ऑफ इनकॉम्पिटेंस हो गया। ठीक है। ये वैसे बड़े एजाज़ की बात होती है कि किसी का लॉ उसके नाम से जाना जाए या थ्योरी जिसने बयान की है वो उसके नाम से जानी जाए। अब वो लॉ क्या था कि पीटर ड्रुकर का कहना ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस में हम सारी उम्र अपने लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस पर ही रहते हैं। कि एक आदमी आज एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर हुआ, उसे काम करना शुरू किया, अब उसे काम नहीं आता। ठीक। 2 साल कंपनी ने उस पर इन्वेस्ट किया है, जी। उसने काम करना सीख लिया। तीसरे साल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। तो जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है तो उसके बॉस ने उसे रिकमेंड कर दिया फॉर फर्दर प्रमोशन। अब वो प्रमोट होके एक लेवल ऊपर आ गया। वहाँ फिर उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो गया और कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उस पर। सही। जब उसने सीख लिया काम, जो ही उसे काम करना आया वो रिकमेंड हो गया फॉर फर्दर प्रमोशन। तो वो लेवल उसका रेज होता जाता है, प्रमोट होता जाता है, हत्ता कि रिटायरमेंट की एज आती है उसकी। वहाँ भी वो इनकॉम्पिटेंट ही होता है। वो कभी भी कॉम्पिटेंस के लेवल पर नहीं पहुँचता।
तो हमारे मुल्क में तो ये लॉ ज़रा ज़्यादा ही नुमाया नज़र आता है। सही। ये जो इस किस्म के लोग होते हैं जो अनड्यू फेवर्स पे प्रमोट होते हैं, जी जी। इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट बॉस आएगा, वो देखेगा कि जहाँ ये बंदा बैठा हुआ है जी जी। जिसको अनड्यू फेवर दी गई है और इसकी वो वर्थ नहीं है, जी। उसने चूंकि अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, हम्म। उसकी अपनी जॉब स्टेक पर है, तो ऐसे आदमी को फौरन निकाल के बाहर कर देगा या उसको डिमोट कर देगा। तो ये कोई इतनी परेशानी की बात है नहीं, होती हैं ये चीज़ें, जी जी। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ठीक है शाह साहब, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आ गए हम यहीं से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक और सिनेरियो में शाह साहब के सामने मैं चाहूँगा कि हम अपने ब्रेक के बाद डिस्कस करें, जैसा कि लड़कियों को क्या करना चाहिए जब वो किस तरह से वो बिहेव करें। बाज़ औक़ात लड़कियां कुछ सिग्नल्स कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली दे लेती हैं अपने लिबास की वजह से, अपनी स्माइल की वजह से या अपने बिहेवियर की वजह से। उसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैरी करना है लड़कियों ने, इस पे हम बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें। हमारा आज का मौजू है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले कि कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से जो मेल बॉसेस हैं या आपके कोलीग्स, मेल कोलीग्स हैं, उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे उसमें लिबास है, उसमें कोई किसी का ज़्यादा मुस्कुरा के बात करना है, या उसमें कोई स्माइल्स ज़्यादा पास करना है, या वैसे ही फ़ारग वक्त में आके बैठ लेना है। तो आइए हम शाह साहब की तरफ चलते हैं, इन तमाम बातों का शाह साहब से जवाब लेते हैं। शाह साहब, होता है ऐसे कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं हंसमुख होती हैं, ज़रा उनको मेल जोल की उनको आदत होती है, वो फ़ारग वक्त में वो बैठ जाती हैं, गपशप लगाती हैं और कोई चाय भी पी लेती हैं। या अगर किसी की बर्थडे आ जाती है, आजकल ये भी रिवाज बहुत है ना कि बर्थडे आ गई जी, हमने आपको सरप्राइज़ बॉस को बर्थडे दे दिया। अच्छा, बॉस ने अपने दिमाग में ख़ुद ब खुद एक बात सोच लेनी है कि ये शायद मुझे लाइक कर रही है, या ये इसकी शायद मेरी तरफ पसंदीदगी हो रही है। या बाज़ बॉसेस जो लड़कियों का लिबास है, अगर लड़की ने जीन्स की पैंट लेट्स सपोज पहनी है या टी शर्ट पहनी है, तो उसको ऐसा महसूस होगा यार ये बोल्ड है, ये हो सकता है सॉफ्ट टारगेट हो। उनके दिमाग में ये भी बात आ जाती है। इसके निस्बतन अगर कोई हिजाब करके आ रही है या बुर्का लेके आ रही है, तो उसके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये आता है, बॉसेस के दिमाग में, कि ये एक कंजर्वेटिव है, इसके साथ हमने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी क्योंकि ये कोई रिलीजियस ख़ानदान की लगती है। तो ये जो लिबास है और जो गुफ्तगू है, ये कितना रोल प्ले करता है मर्द के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस क्रिएट करने में? बात आपकी दुरुस्त है, होता ऐसे ही है, लेकिन जो समझदार बच्चियां हैं वो इस बात को हर एक पे वाजे कर देती हैं कि एक लाइन खींची है तो हमारी कर्टेसी, हमारा मुस्कुरा के बात करना, जी, हंस के बात करना, उसका मतलब ये नहीं है, बल्कि हम इस लाइन से आगे जाने को तैयार नहीं। वो मैसेज रफ्ता रफ्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक को लाउड एंड क्लियर रिसीव हो जाएगा और लोग फिर एहतराम करने लगते हैं। थोड़ा सा जो डिग्निटी और प्रेस्टीज का एलिमेंट है, हंसी मजाक बड़ी अच्छी बात है, हर एक से मुस्कुरा के बात करना बड़ी अच्छी बात है, सदका जारिया है वो जी। लेकिन जो डिग्निटी और प्रेस्टीज है जी, वो हर एक को अपनी जगह कायम रखनी चाहिए और एक क्लियर कट लाइन ड्रॉ हो जाए और वो बड़ी वाजे कर दी जाए हर एक के ऊपर कि दिस इज द लाइन, नथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक। अच्छा, एक जुमला अक्सर बोला जाता है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए। अब एक लड़की आई है, जैसे ऑफिस में आ रही है, वो उसने बड़ा अच्छे परफ्यूम्स लगाए हैं या अच्छा लिबास है, तो अमूमन लड़के कह देते हैं जी या यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी,
you are looking very beautiful, you are looking very charming, your personality is very good. اب یہ جملے وہ بول رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بھی بات آ رہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس لڑکی کے دل میں ہمارے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو. آغاز تو یہی سے ہوتا ہے نا کہ گفتگو میں سے آغاز ہوگا, پھر بات آگے بڑھے گی, پھر بات جو ہے وہ چائے پہ جائے گی, کھانوں پہ جائے گی. تو ان جملوں کا خاص طور پہ, کیونکہ میں پرٹیکولرلی آپ سے جو ریئل ٹائم سینیریوز اس پہ بات کر رہا ہوں, ان جملوں کا کیا رسپانس کرنا چاہیے لڑکیوں کو؟ نہیں, اگر سیریس ہو کے تھینک یو کہہ دیں جی تو جوابی میسج بڑا کلیئر چلا جائے گا کہ آپ نے جملہ کہہ دیا, اس کا شکریہ تو اس نے ادا کیا, بٹ شی کوڈنٹ لائک اٹ. تو معاملات وہیں ختم ہو جاتے ہیں. اور جو آگے سے اسمائل پاس کرنی اور پھر اس طرح وہ پھر کہنا, دوسرے کو انکریج کرنے والی بات. وہاں سے انکریجمنٹ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ, کیونکہ آرگنائزیشن کا ڈیکورم بھی جو ہے وہ بھی رکھنا ہوتا ہے, اگر آپ تھینک یو کا ورڈ استعمال کریں اور اپنا چہرہ ذرا سخت اور اسپاٹ رکھیں تو وہاں سے اس کو پھر بعد میں ہو سکتا ہے وہ بعد میں یہ نہ ہو. اچھا, میں شاہ صاحب آپ سے 2 اور سینیریوز پہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ وہ ایسے کیسے معاملات کو ہینڈل کرتی ہے, تو اس نے مجھے بڑا ایک نا خوبصورت اور بڑا کریٹو سلوشن بتایا. اس نے کہا کہ میں جب پہلے دن جاب کے لیے آئی تھی تو اگلے ہی دن میں نے اپنے فیونسی کو لے کے آئی میں, اور میں اپنے فیونسی کے ساتھ میرے سب کی ملاقات کروا دی, اور میرے نا خود بخود یہ بات مشہور کرنی شروع کر دی کہ جی میرا یہ فیونسی ہے. حالانکہ وہ میرا فیونسی نہیں تھا, لیکن ویسے ہی میں نے اپنی سیفٹی کے لیے یہ بات مشہور کر دی. اور پھر میں ویسے ہی کہہ دیا کرتی تھی کہ جی مجھے آج فیونسی پک کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آج ہم ان کے گھر گئے ہوئے تھے, کھانا کھانا ہے. وہ کہتی کہ میں اس طرح کی نا کوئی فیبریکیٹڈ سٹوریز جو ہیں وہ میں نے سنانی شروع کر دی. تو مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا. جب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ انگیجڈ ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بڑا فارمولہ اس نے بڑا کام کیا ہے. مجھے کوئی اپروچ نہیں کرتا اور مجھے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ کافی کے لیے چلیں یا کھانے کے لیے چلیں. شاہ صاحب, ایک اور بات جو نوٹ کرنے کے لیے آئی ہے, جو وڈو ہوتی ہے یا جو ڈائیورسی ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی نا لوگ بڑا, ان کو لگتا ہے کہ شی ول بی ویری ایزی اویلیبل, اور کیونکہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تنہائی کا شکار ہوگی اور اپنے ہسبینڈ سے دور ہوگی, فرسٹریٹڈ بھی ہوگی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سافٹ ٹارگٹ ہے اس کے لیے. ان خواتین کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ نسخہ تو وہی ہے کہ آپ دوسروں کو بغیر ڈسکرٹیس ہوئے, بغیر روڈ ہوئے ایک چیز کلیئر کر دیتے ہیں. جیسے اس بچی نے یہ فینسی والا کام کر لیا, یہ اچھا ڈیٹرنٹ کریٹ کیا انہوں نے. اسی طرح اگر یہ خاتون جو ہیں جی اگر یہ کلیئر کر دیں دوسروں پہ جی جی کہ ایک لمٹ تک آپ میرے کولیگ ہیں, اس کے علاوہ میرا کوئی تعلق نہیں, ٹھیک, تو وہ ڈگنیٹی کے ساتھ یہ کر لیں. یہ تو ہر ایک کے لیے فارمولا کام کر جاتا ہے. اچھا شاہ صاحب, اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس کو آپ نہیں, کیا اس کا سمجھتے تو ہیں؟ میں نے عرض کیا نا پہلے ہی جی, کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. نہیں, اس کو آپ سمجھتے کیسے ہیں کہ اٹس اوکے, یہ ایسے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں, اسلام نے تو اس کا منع کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں گے, جی جی, فائن, اس میں آرگنائزیشن کو کیا اعتراض ہوگا, کر لیجئے. اچھا شاہ صاحب, مجھے ایک ٹیچر ملی, وہ ایک بہت بڑے اسکول میں پڑھاتی ہیں اور پچھلے 20 سال سے پڑھا رہی ہیں. ان کی اکثر یہ شکایت مجھے ملتی ہے کہ جو میری باس ہیں وہ مجھے پروموٹ نہیں کر رہی, وہ میری تنخواہ نہیں بڑھا رہی. وہ کہتی ہیں جی 20 سال لگا دیے میں نے اس فیلڈ میں, اور 20 سال کے بعد میری تقریباً 1.5 لاکھ تنخواہ ہوئی. وہ 30,000 سے شروع ہوئی, بڑھتے بڑھتے 3,000 4,000 بڑھتے بڑھتے میں 1.5 لاکھ پہ پہنچ گئی. اچھا, اس میں ایک تو انفلیشن آ گئی. وہ کہتی ہے مجھے آج تک اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میری تنخواہ بڑھی ہے, کیونکہ جیسے ہی 5,000 تنخواہ بڑھتی تھی ادھر سے انفلیشن میں مہنگائی بڑھ جاتی تھی, اور میں آج ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوں. تو ایسی خواتین کو آپ سر کیا سجیسٹ کریں گے؟ وہ جو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا پروگرام کے شروع میں جی کہ خواتین بھی میل باسز کو کیوں پسند کرتی ہیں, جی جی, اس کے اندر ایک اور ریزن ہے. وہ بات وہیں ادھوری رہ گئی تھی جی جی جی, فار سم ریزن.
वो रीज़न ये है कि ख़वातीन के दरमियान पर्सनालिटी क्लैश बड़ी जल्दी पैदा होता है। जो उनकी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स हैं जी वो बड़ी क्विक होती हैं और बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। जबकि अगर मर्द बॉस है आपका, जी या मर्दों के केस में औरत बॉस है, जी तो वो पर्सनालिटी क्लैश बहुत कम आएगा कम आएगा। और वहाँ पे पर्सनल लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स बहुत कम काउंट करेंगी। वैसे तो जो आदमी सीनियर पोजीशन पे पहुँचता है, तजर्बा और प्रैक्टिस उसको एक चीज़ सिखा देती है कि जब वो एनुअल इंक्रीमेंट दे रहा है या प्रमोशन दे रहा है तो उसके हाथ में ऑटोमेटिकली तराजू आ जाता है और वो फिर कम से कम उस वक्त एक जुमला लिखते हुए पूरी तरह इंसाफ कर देता है, ना चाहते हुए भी इंसाफ करता है। ये आपकी जो अथॉरिटी और पोजीशन है जी वो फोर्स कर देती है आपको कि आप फिर वहाँ बेलाग और जो चीज़ ड्यू है वो लिखते हैं। बाकी ये जो इंक्रीमेंट लगने से जो सैलरी बढ़ी जी जी और उसका एहसास नहीं हुआ, जी देखिए ये जो एनुअल इंक्रीमेंट होती है हमारी, जी जी ये बेस्ड होती है इन्फ्लेशन पर। सही ये कंपनसेट आपको करती है जो आपके यहाँ इन्फ्लेशन है। अलबत्ता आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है उस पर जो आपको अपग्रेड करते हैं या प्रमोट करते हैं वो उसका इनाम है। लेकिन ये जो एनुअल इंक्रीमेंट है, इसीलिए कानूनन एनुअल इंक्रीमेंट किसी की रोकी नहीं जा सकती तब वक्त के आप उसको एडवांस नोटिस न दें कि 4 महीने के बाद जो इंक्रीमेंट आपकी लगनी है जी जी वो नहीं लग पाएगी क्योंकि आपका कंडक्ट या आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। नहीं है, सही है। उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। सही तो अगर उसकी एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री है तो आप उसकी इंक्रीमेंट रोक लेंगे। लेकिन अगर आपने बगैर इत्तला के, जी बगैर उसको डिफेंस का मौका दिए जी जी इंक्रीमेंट रोकी तो लीगली आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं फॉर एक्शन। सही तो ये जो सिर्फ इंक्रीमेंट मिलती रही है, जी जी उनको अपग्रेड नहीं किया गया है या प्रमोट नहीं किया गया है, तो उसके पीछे पर्सनालिटी क्लैश है। पर्सनैलिटी क्लैश है। और फिर देखिए एक चीज़ और भी होती है। जी मेरा नेचुरल रिएक्शन एक ये होगा कि अगर आपका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है या आपने मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं जी कि मैं आपको ब्लेम कर दूंगा जी कि अली अब्बास साहब ज़्यादती कर रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं वो। हालांकि पैसे इसके कि मैं आपको कुछ कहूँ, मुझ पे लाजमी है कि मैं ये देख लूँ कि मेरे अंदर खामी कहाँ है। तो जब हम ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो 90% केसेस में मामला ठीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक कंप्लेंट आम है और वो है भी सही, जी गलत नहीं है, कि ख़वातीन ये कहेंगी कि मेरा हस्बैंड किसी और औरत में इंटरेस्टेड हो गया। जी जी बिल्कुल वो गलत कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए ऐसा, ये तो तय है बात। जी जी लेकिन इसके साथ साथ अगर ख़वातीन ये देख लें कि मेरी ऐसी कौन सी आदत है जी जिससे वो तंग आके बाहर मुतवज्जो हुआ है सही या दूसरी उसने शादी कर ली है, उसको दूर कर ले, मामला सही हो जाता है। सही है। तो इसी तरह नौकरी में भी अगर मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं कर रहा जी जी तो एक तो ये हो सकता है कि
He doesn't like my looks. अब उसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है. पर्सनालिटी क्लैश हो सकता है, लेकिन मेरा उसका फ़र्क इतना है कि पर्सनालिटी क्लैश कहीं है नहीं. तो मुझे देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं स्लो हूँ या मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, या मेरा रवैया अपने कोलीग्स के साथ ऐसा तो नहीं कि मेरी कंप्लेंट्स वहाँ तक पहुँच रही हैं, या मैं लाउड माउथ तो नहीं हूँ कहीं. सही. केयरफुल नहीं रहता मैं अपनी गुफ्तगू में, तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा कि रीज़न क्या है, तो उसको मैं दूर कर लूँ, मामला दुरुस्त हो जाएंगे. शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है. आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू सुनी हरासमेंट के हवाले से. मुझे जो 2-3 जो बातें समझ आई हैं, शाह साहब ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत ज़्यादा किरदार है, और जो लड़कियों को अपना रवैया, अपना लिबास वो भी बेहतर रखना चाहिए. शटअप कॉल दे देनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा मुस्करा के जवाबात नहीं देने चाहिए लड़कियों को. और जैसे ही कोई अगर आपको कोई इशू आता है तो मेरे ख्याल से जो कंप्लेंट है दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन. मैंने ये भी देखा है कि लड़कियां स्ट्रेस में चली जाती हैं, एंजाइटी में चली जाती हैं, वो दुख होता है उनको, किसी से बात नहीं कर पाती, नौकरी छूट जाने का डर होता है. ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो लड़की खौफज़दा रहती है. इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम्स में मैं चाहूँगा कि शाह साहब से लीडरशिप, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, बिहेवियर के मौज़ूआत मैं और डिस्कस करूँ, जैसे स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं आप वर्क प्लेस पे. और ये एक बहुत बड़ा मसला आजकल हमारा जो चल रहा है वर्क लाइफ बैलेंस का, वो कैसे हो सकता है, फियर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जो टीम में काम जो है वो बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, अपनी तरक्की के लिए क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कम्युनिकेशन को, प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है. ये वो मौज़ूआत हैं जो मैं चाहूँगा कि आने वाले अपने एपिसोड्स में हम शाह साहब के साथ डिस्कस करें. आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. आप देख रहे थे प्रोग्राम आओ बात करें. सरफराज शाह साहब हमारे साथ थे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी साथ होंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. मुझे इजाज़त दीजिए.